سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہنور ارشد۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے ٹیکس گوشواروں نے سب کو حیران کر دیا۔ وزارت عظمیٰ سنبھالتے ہی ان کی آمدنی کئی گنا بڑھ گئی۔ عمران خان نے ٹیکس سال 2019 میں پہلے کے مقابلے میں 3300% زیادہ ٹیکس دیا۔ ریکارڈ کے مطابق وزیر اعظم نے 2019 میں 98,54,959 روپے ٹیکس دیا، جبکہ 2018 میں انہوں نے 2,82,449 روپے ٹیکس جمع کرایا تھا۔ اس طرح ان کی ٹیکس کی رقم میں ایک سال میں ہی 95,72,000 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ وزیر اعظم نے 2017 میں صرف 1,03,763 روپے ٹیکس دیا تھا۔ تو ایف بی آر کی ٹیکس ڈائریکٹری نے کئی بڑوں کا پول کھول دیا۔ 10 ارکان قومی اسمبلی اور 8 سینیٹرز نے کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا، جن میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، مفتی عبدالشکور، منصور حیات خان اور نیاز احمد جھکڑ بھی شامل ہیں۔ سیف الرحمان، سلیم الرحمان، فرخ خان، شکیلہ خالد چودھری، پیر امیر علی شاہ جیلانی اور سردار محمد خان لغاری نے 1 ٹکا بھی خزانے میں جمع نہیں کرایا۔ 10 سے زائد ارکان پارلیمنٹ ایسے بھی ہیں جنہوں نے صرف 1,000 روپیہ انکم ٹیکس دیا ہے۔ ان میں ہاشم رضا جیلانی، سمسام بخاری، سید رفاقت علی گیلانی، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست محمد خان مزاری بھی شامل ہیں۔ سہیل شوکت بٹ، سردار محسن لغاری اور عامر نواز خان، خالد محمود بابر، جعفر علی اور روی کمار نے بھی صرف 1,000 روپے ٹیکس دے کر اپنا قومی فریضہ ادا کیا ہے۔ تو کئی ایسے ارکان پارلیمنٹ ہیں جنہوں نے ٹیکس بہت ہی کم دیا ہے۔ 8 سینیٹرز نے کوئی ٹیکس نہیں دیا۔ 10 ارکان قومی اسمبلی نے بھی کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا ہے۔ جنہوں نے ٹیکس نہیں دیا ان میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، مفتی عبدالشکور، منصور حیات خان اور نیاز احمد جھکڑ شامل ہیں۔ کس نے کتنا ٹیکس دیا سب سامنے آ گیا۔ عمران خان نے 2019 میں 98.5 لاکھ روپے ٹیکس ادا کیا، شہباز شریف نے 82 لاکھ، آصف علی زرداری نے 28 اور بلاول بھٹو نے 5 لاکھ روپے ٹیکس جمع کرایا۔ ایف بی آر کی ٹیکس ڈائریکٹری جاری کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے صرف 2,000 روپے ٹیکس بھرا۔ اپوزیشن کو حاوی نہ ہونے دیں، انہیں آئینہ دکھائیں۔ آپ کا برانڈ وزیر اعظم ہے جو چور ڈاکو نہیں ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی ترجمانوں کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ عمران خان نے ترجمانوں کو اپوزیشن کے بیانیے کے آگے ڈٹ جانے کی ہدایت کر دی۔ مزید جانیں گے 24 نیوز کے نمائندے اویس کیانی سے۔ اویس، وزیر اعظم نے کیا لائن آف ایکشن دی ہے ترجمانوں کو، بتائیے گا۔ دیکھیں ایک مرتبہ پھر جو ہے حکومتی ترجمانوں کا اور پارٹی رہنماؤں کا جو ہے اجلاس ہوا ہے۔ شوکت ترین نے معاشی اشاریوں پہ جو ہے بریفنگ دی ہے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ نومبر کی نسبت دسمبر میں مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، آئندہ مہینے مزید مہنگائی جو ہے وہ کم ہوگی۔ اور آج اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ منی بجٹ کی آڑ میں جو ہے اپوزیشن جو ایک بیانیہ بتا رہے ہیں اس کو جو ہے وہ کم کرنا ہوگا، اس کا فیس کرنا پڑے گا۔ اور دوسری طرف یہ بھی انہوں نے کہا ہے وزیر اعظم عمران خان نے کہ اپوزیشن کو کسی کو تابع نہ ہونے دیں۔ اپوزیشن اپنے چور ڈاکو اور کرپٹ رہنماؤں کو تحفظ دیتی ہے اور آپ کا جو برانڈ ہے وہ وزیر اعظم ہے اور وزیر اعظم جو ہے آپ کا وہ چور ڈاکو نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اویس کیانی، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ اور وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کا بورڈ حکومت کی بات نہیں سنے گا تو تبدیل کر دیں گے۔ مرکزی بینک بورڈ کے 8 ارکان حکومت کی ہدایات کے مطابق کام کریں گے۔ 24 نیوز کے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 میں گفتگو کرتے ہوئے شوکت ترین کا کہنا تھا کہ آئندہ گورنر اسٹیٹ بینک کا تقرر 5 سال کے لیے ہوگا۔ منی بجٹ سے کوئی طوفان نہیں آ جائے گا۔ کہ نہیں ہے آپ کا کہ آپ بالکل یہ جو ہے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ مادر پدر آزاد ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مانیٹری پالیسی کی جو کمیٹی بھی ہوگی نا وہ بھی مطلب اس بورڈ میں سے بنے گی یا یہ بورڈ جو ریکمینڈ کرے گا، اور بورڈ ہمارا ہے تو اس کے بیچ میں ہم لوگ اس میں ایسے لوگ لگائیں گے جو ہماری سوچ کی عکاسی کریں گے۔ جی ورسٹ کیس سیناریو ہے کہ فرض کریں اگر جی بورڈ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک بیٹھ کے اور وہ کہے گا یار بالکل ہم مادر پدر آزاد ہیں، ہم کسی اور ایک ملک میں رہ رہے ہیں، تو یہ تو سمپل میجورٹی سے چینج ہو سکتا ہے۔ اٹ از ناٹ اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس نہیں کر رہے ہیں ہم اس پہ، یہ سمپل میجورٹی ہے، تو یہ کوئی بھی حکومت جا کے سمپل میجورٹی میں چینج کر دے گی۔
اور بلیٹن میں ٹاپ سٹوری شامل کرتے ہیں۔ زندگی دشوار تھی لیکن اب مرنا بھی بہت ہی مشکل ہو گیا۔ لاہور کی انتظامیہ نے قبرستان تک میت لانے والی ایمبولنس کے کرائے میں ہوش شبہ اضافہ کر دیا ہے۔ ایک ساتھ 1,500 روپے اضافے نے شہریوں کو پریشان کر دیا۔ مزید جان لیتے ہیں، دلاور نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دلاور، بتائیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، مہنگائی میں پستی عوام پر آج حکومت کی جانب سے ایک اور بم گرا دیا گیا ہے۔ جیسا کہ غریب عوام جو ہے پہلے ہی مہنگائی کے چکی کے تلے پس رہی تھی، ان پر اب اپنے پیاروں کی میتوں کو بھی ہسپتال سے قبرستان تک لے کر جانا جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ایمبولینس استعمال کی جاتی تھی، ان کی کرایوں میں 1500 سے 2500 تک جو ہے ان کو بڑھا دیا گیا ہے، اور جو ایڈمن آفیسر میانی صاحب ہیں ان کی جانب سے اور سیکٹری لاہور جو ہے ان کی جانب سے ڈی سی کو جو ہے وہ استدعا کی گئی تھی کہ جو کرائے ہیں ان کو بڑھایا جائے، اور اس میں درخواست میں یہ کہا گیا تھا کہ 2500 میں جو 1500 ہے کرائے میں جو ہے وہ ایمبولینس کے جو اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، اور ان کو آج جو ہے 2500 تک جو ہے بڑھا دیا گیا ہے، اور عوام پر جو ہے ایک اور جو ہے وہ بم گرا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ دلاور آپ کا۔ آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کی حکومت نے محمود و ایاز کو ایک ہی صف میں کھڑے کر دیا۔ غریب شہریوں کے ساتھ ساتھ نہ صرف وزیر اعظم عمران خان مفت علاج کے لیے قومی صحت کارڈ کے اہل بنے، بلکہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو بھی قومی صحت کارڈ کا اہل قرار دے دیا گیا۔ یہی نہیں، نواز شریف کی مرحومہ اہلیہ بیگم کلثوم نواز بھی صحت کارڈ کے لیے اہل ہیں۔ حکومت کے ٹول فری نمبر نے باقاعدہ تصدیق کر دی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ حکومت کے یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام نے مثال قائم کر دی۔ عام شہریوں کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان بھی قومی صحت کارڈ کے تحت پینل پر موجود ہسپتالوں سے مفت علاج معالجہ کرا سکتے ہیں۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ عمران حکومت نے یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی قومی صحت کارڈ کا اہل قرار دے دیا ہے۔ ان کی مرحومہ اہلیہ بیگم کلثوم نواز بھی قومی صحت کارڈ کے لیے اہل ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا قومی شناختی کارڈ نمبر 8500 پر بھیجا گیا، جہاں سے آنے والے آٹومیٹک جوابی میسج میں باقاعدہ تصدیق کی گئی کہ محمد نواز شریف بطور خاندان سربراہ بما ایک فرد قومی صحت کارڈ کے لیے اہل ہیں۔ نواز شریف اور ان کی مرحومہ اہلیہ بیگم کلثوم نواز حکومت کے مقرر کردہ پینل میں شامل کسی بھی ہسپتال سے مفت علاج کرا سکیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پہلی بار غریبوں کے لیے ہیلتھ کارڈ لے کر آئے ہیں۔ پہلی دفعہ غریبوں کو ہیلتھ انشورنس ملی ہے، صحت کارڈ کی، وہ انشاءاللہ سارے پاکستان میں لے کے جائیں گے، تاکہ غریب آدمی جب بیمار ہو تو اسے پتا ہو کہ اس کے پاس انشورنس کارڈ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا صحت کارڈ تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ بیماری کی وجہ سے غریب خاندان مزید غربت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہیلتھ کارڈ غریب گھرانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت۔ الیکشن کمیشن کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن پر ایف سی کے 36 اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں، جو 3 شفٹوں میں ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ سیکیورٹی میں اضافہ کیوں کیا گیا ہے، یہ جان لیتے ہیں۔ عثمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائے گا الیکشن کمیشن کی سیکیورٹی بڑھانے کی وجہ کیا ہے؟ بالکل، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سیکیورٹی اب ایف سی کے حوالے کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی درخواست پر وزارت داخلہ کی جانب سے 36 ایف سی اہلکاروں کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے منظوری دی ہے، اور الیکشن کمیشن کے باہر اب سیکیورٹی کے فرائض ایف سی نے سنبھال لی ہیں۔ اس سے قبل اسلام آباد پولیس اور الیکشن کمیشن کا عملہ یہاں پر سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے 36 ایف سی کے اہلکار جو کہ 3 مختلف شفٹوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ عثمان، بہت شکریہ آپ کا۔ خواتین کے بغیر الیکشن نہیں کہلایا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بڑا فیصلہ جاری کر دیا۔ لکی مروت کی تحصیل سرائے نورنگ کے 6 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ کا حکم بھی دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے جے یو آئی کے حزب اللہ خان کی درخواست پر تحریری فیصلے میں کہا کہ گرلز اسکول ہرمتلہ میں خواتین کا ایک ووٹ بھی کاسٹ نہیں ہوا۔ ریکارڈ سے واضح ہے کہ خواتین کو ووٹنگ سے دور رکھنے پر تمام فریق متفق تھے۔ خواتین کو انتخابی عمل سے دور رکھا جائے تو اسے الیکشن نہیں کہا جا سکتا۔ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کل پیش کی جائے گی۔ پیش بندی کے طور پر فاروق حبیب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کی تفصیلات سامنے لے آئے۔ بولے یہ فنڈز کے ذرائع نہیں بتا رہے، رسیدیں دینے سے بھی قاصر ہیں۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اسمبلیوں سے استعفے کو
बतौर हथियार इस्तेमाल करना या ना करना पीडीएम की इज्तिमाई सोच थी। अब भी इज्तिमाई सोच के तहत फैसले होने जा रहे हैं। 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि इजलासों में अब मारूजी सूरत हाल को सामने रखकर तज्जिया किया जाता है। फवाद चौधरी कहते हैं कि JUI का जीतना बदकिस्मती है। फिरका वारियत पर मबनी जमाती ऊपर आई तो नुकसान होगा। KP इलेक्शन जैसा शफाफ इंतखाब तारीख में नहीं हुआ। पंजाब में भी साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। ये रोंदू अपोजिशन है। इमरान खान ब्लैकमेल होंगे, ना एहतसाब के अमल से पीछे हटेंगे। मौलाना फजलुर रहमान अगर JUI जीतती है या TLP जीतती है, ये बड़ी बदकिस्मती की पाकिस्तान में बातें हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान फिरका वारियत की एक सियासी तरफ जा रहा है। जो सियासी जमातें जो हैं उनको बड़े अमूर के ऊपर एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए और एक बड़े मसलों के ऊपर, रिफॉर्म्स के ऊपर, इस्लाहात के ऊपर बात होनी चाहिए। अगर आप ये कहेंगे कि इस तरह से कोई ब्लैकमेल होगा और केसेस जो है उनमें रिलीफ दे देंगे, इमरान खान दे देगा या PTI इससे पीछे हट जाएगी, तो ये तो नहीं होना। हम अभी तक पैसे वापस नहीं ला सके। इमरान खान पहले भी वाजे कर चुके हैं और PTI भी वाजे कर चुकी है। सऊदी ख़वातीन अब मुमलिकत में हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन चलाती भी नजर आएंगी। सऊदी रेलवे पॉलीटेक्निक ने ऐलान किया है कि हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन लीडर्स प्रोग्राम में ट्रेनिंग के लिए सऊदी ख़वातीन की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत ख़वातीन ग्रेजुएट्स गुज़िश्ता प्रोग्राम में ट्रेनिंग पाने वाले मर्दों के साथ मिलकर काम करेंगी। हरमैन एक्सप्रेस सऊदी अरब की हाई स्पीड ट्रेन सर्विस है जो मक्का और मदीना के दरमियान चलेगी। तवक्को जाहिर की गई है कि सालाना 6 करोड़ मुसाफिर इससे इस्तेफादा करेंगे। ख़वातीन के लिए प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन 13 जनवरी तक खुली है और रेलवे पॉलीटेक्निक की वेबसाइट के जरिए दाखिला लिया जा सकता है। पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर आ गई, जबकि ओमिक्रॉन के केसेस में भी तेजी से इजाफा होने लगा है। लाहौर में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 110, इस्लामाबाद में 100 और कराची में 54 हो गई। NCOC ने वबा की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र लाजमी वैक्सीनेशन के लिए सख्त इकदाम करने का फैसला कर लिया। अब मुल्क भर में 30 साल की उम्र के अफराद भी बूस्टर वैक्सीन लगवा सकते हैं। वजारत इंसानी हकूक़ का लापता अफराद से मुतालिक तैयार बिल कहाँ गुम हुआ? वजारत इंसानी हकूक़ को अपने ही बिल की तलाश है। श्री मजारी का कहना है कि लापता अफराद से मुतालिक बिल उन्होंने तैयार कर लिया था। बिल कायमा कमेटी और कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका। कौमी असम्बली ने लापता अफराद से मुतालिक बिल मंजूर किया हुआ है। बिल कौमी असम्बली से सेनेट जाते हुए रास्ते में मालूम नहीं कहाँ गुम हो गया। उनका कहना था कि बताया जा रहा है कि अब बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट के पास है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। 2 अहम किरदारों की शनाख्त कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक साजिद गर्मा और मोहसिन नामी अफराद ने असलहा फराहम किया। दोनों मुलजिमान ने शूटर्स को फायरिंग के लिए भेजा। हमलावरों की तस्वीर भी मंजर आम पर आ गई हैं। दोनों ने जाए वारदात से कुछ दूर जाकर चेहरों से रुमाल हटाए। शनाख्त के लिए तस्वीर नादरा को भिजवा दी गई हैं। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिका अहलिया रेहाम खान की गाड़ी को नामालूम अफराद की जानिब से रोकने की कोशिश की गई। वाक़या IJP रोड पर पेश आया। रेहाम खान के पर्सनल सेक्रेटरी बिलाल अजमत की दरख्वास्त पर थाना शम्स कॉलोनी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इतवार की शब 12:30 बजे के लगभग उनकी गाड़ी को 2 असलहा बरदार मोटरसाइकिल सवारों ने रोकने की कोशिश की। मज़कूरा गाड़ी सारा दिन रेहाम खान के इस्तेमाल में रही। दरख्वास्त में बताया गया कि मुलजिमान की उम्रें 25 से 30 बरस के दरमियान थीं। बिलाल अजमत ने कहा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, उनको डरा कर रेहाम खान को पैगाम देने की कोशिश की गई। कराची में गैर एलानिया बदतरीन गैस लोड शेडिंग ने शहरियों को अजाब में मुब्तला कर दिया। गैस बहरान ने घरेलू सार्फिन समेत चाय के होटलों को बुरी तरह मुतासर किया है। इसी बारे में बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट थी। शहर कायद में 2 चीजें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। एक सर्दी की शिद्दत, दूसरी SSGC की गफलत। शहर का मौसम सर्द हुआ तो चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। SSGC की बद इंतजामी ने गैस के बहरान को मजीद बदतर कर दिया। गैस की आंख मचोली ने मामूलाती जिंदगी को बुरी तरह मुतासर करके रख दिया। 24 घंटे गैस बंद पड़ा है। हम खाना कहाँ पचाए, क्या खाए, कौन सी तब्दीली आ गई है।
ये तो बिल यानी जो परेशान हम लोग हैं, गरीब मजदूर, ये मसला है ना हमारे लिए। गैस की बंदिश के सबब होटलों पर शहरियों को चाय पराठा या नाश्ता मिलना भी मुश्किल हो गया। सर हमने तो सिलेंडर रखा है, बहुत परेशानी है, ये सिलेंडर रखा है, गैस नहीं आ रहा है, गैस में बड़ा मुसीबत होता है, सिलेंडर में सब डरते हैं कस्टमर। शहरी कहते हैं कि सिर्फ बिल आते हैं, चूल्हे में गैस नहीं आती। बयानात और दावों के बजाय गैस की सूरत से निपटने के लिए इकदाम कर लिए जाते तो आज जिंदगी के तल्ख अय्याम ना गुजारने पड़ते। कराची एक्सपो सेंटर में 16वें बुक फेयर के आखिरी रोज़ भी शहरियों का रश लग गया। कुतुब बीनी के शौकीन अपनी पसंदीदा किताबों की खरीदारी में मसरूफ़ रहे। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। किताब को इंसान का बेहतरीन दोस्त कहा जाता है और अपने बेहतरीन दोस्त के इंतखाब के लिए कराची एक्सपो सेंटर में कुतुब बीनियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। यह है एक्सपो सेंटर कराची का हाल नंबर 3, जहां हर उम्र के अफराद की निगाहें मनपसंद किताबों को खोज रही हैं। जी हाँ, मुताले के शौकीन अफराद इस कुतुब मेले से बहुत मुस्तफीद हो रहे हैं, लेकिन उर्दू की किताबें कम होने का भी शिकवा कर रहे हैं। निसाबी, गैर निसाबी, अदबी और सियासी समेत इस्लामी किताबें भी कुतुब बीनियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। कुतुब फरोशों का कहना है कि कोरोना की वजह से आने वाले 1 साल की खिला को इस बुक फेयर ने पूरा कर दिया है। यहाँ पे बहुत किस्म के बुक्स हैं, इस्लामिक बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, लेकिन हमें मतलब ऑनलाइन हम बुक्स बाई कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ आके बुक्स को खुद मतलब देख के हम पढ़ सकते हैं और हम बाई कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक से। मुंतज़मीन के मुताबिक कुतुब मेले में खुसूसी रायत भी दी जा रही है। किताबों के मुतलाशी अफराद के लिए ये मेला आज इक़्ताम पजीर होगा। मौसम बहार के आगाज़ के साथ ही डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का महकमा बागात गुले दाऊदी के मुनफरिद नुमाइश के लिए तैयार है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची 3 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह कल करेंगे। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। 400 फूलों की बहार होगी। मुख्तलिफ रंगों बू के फूल शुरका पर अलग ही सहर तारी कर देंगे, क्योंकि मौसम बहार को खुशामदीद कहने के लिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में फूलों की नुमाइश होगी। फूलों की नुमाइश का इनेकाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर तालीमी बाग ब्लॉक 14 फेडरल बी एरिया में किया जा रहा है। गुल दाऊदी के 100 से ज़ायद रंगों पर मुश्तमिल फूलों की नुमाइश कल से 3 रोज़ तक जारी रहेगी। और ये जो हम शो करने जा रहे हैं क्रेंसनथीमम, जिसे हम आम जबान में गुले दाऊदी कहते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में जो गुले दाऊदी है या तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल करता है या 2 शायद कंटोनमेंट ने, एक इस्लामाबाद और एक लाहौर, ये करते हैं। और जब हम क्रेंसनथीमम का नाम देते हैं तो यहाँ जितना भी डिस्प्ले है ये इसी फैमिली का है, जिसे हम क्रेंसनथीमम या गुले दाऊदी कहते हैं। डिप्टी डायरेक्टर बागात गुलबर्ग जोन रेहान हमदानी के मुताबिक नुमाइश में 35,000 गुल दाऊदी के फूल पौधे रखे जाएंगे। ये गुले दाऊदी फ्लावर शो जो है कल इसकी ओपनिंग होगी। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब इसकी जो है ना ओपनिंग करेंगे 4 बजे कल, और ये उसके बाद जो है 3 दिन मज़ीद जारी रहेगी ये नुमाइश हमारी। गुल दाऊदी की नुमाइश से कबल ही इसकी तैयारियों में आवाम की गहरी दिलचस्पी देखने में आई। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए शजरकारी वक्त की अहम ज़रूरत है और फूलों की नुमाइश आवाम को शजरकारी की जानिब राग़िब करने का बेहतरीन ज़रिया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। अहम कौमी शाहराहों पर आमदोरफ्त बहाली के लिए PDMA ने भारी मशीनरी पहुंचा दी है। चमन में कोजक टॉप और किला सैफुल्ला में कान मेहतरजई में लिविस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शिमाल मगरबी बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाला मजबूत सिस्टम रात से मौजूद है, जिसके बायस बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में तेज़ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। जबकि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में रात के औकात में कहीं कहीं तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों में मतला अबारालूद और सर्द मौसम रहेगा। इस्लामाबाद में कल बारिश की तवक्को है, जबकि पंजाब के बेशतर अजला में मतला अबारालूद रहने की तवक्को है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची में सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज़ भी जारी है। धरने में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि कराची को हुकूक दिलाए बगैर धरना ख़त्म नहीं होगा। आपको बताएं कि कराची में सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज़ भी जारी है। धरने में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि कराची को हुकूक दिलाए बगैर धरना ख़त्म नहीं होगा। सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज़ भी जारी है। जमात इस्लामी के धरने में ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। सिंध का बल्दियाती कानून वापस लिया जाए, मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया है, जबकि हाफिज़ नईमुर रहमान की जानिब से कहा गया कि कराची को हुकूक दिलाए बगैर धरना ख़त्म नहीं होगा।
जमात इस्लामी के धरने में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि सिंध का बल्दियाती कानून वापस लिया जाए। कराची को हुकूक दिलाए बगैर धरना ख़त्म नहीं होगा। हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से कहा गया, कराची में सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज़ भी जारी है। जमात इस्लामी के धरने में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताएगा इस धरने के हवाले से। बिल्कुल जी, जमात इस्लामी का बल्दियाती बिल के हवाले से धरना जो है चौथे रोज के अंदर दाखिल हो गया और 4 रोज से जो आज का जो धरना था, जमात इस्लामी अमीर हाफिज नईमुर रहमान कराची का ये कहना है कि आज खवातीन के नाम की आज का धरना और आज खवातीन ने बड़ी तादाद के अंदर शिरकत की और बल्दियाती बिल के हवाले से इसके खिलाफ नारेबाजी भी की और आज सिंध हुकूमत की जानिब से भी जो है वो रब्ता किया गया। नासिर हुसैन शाह से टेलीफोनिक रब्ता हुआ हाफिज नईमुर रहमान का। अपने खिताब में उन्होंने टेलीफोनिक रब्ते के अंदर जो बातचीत हुई उसके बारे में आगाह किया। धरने के शुल्का को उनका कहना है कि बल्दियाती बिल जो कानून तैयार किया गया इसके बामकसद बात करने की जो है वो जरूरत है। पहले भी बातें हो चुकी है, बिना बामकसद बात होगी ही तो ही जो है वो इस पर बात की जाएगी। जबकि नासिर हुसैन शाह ने चाय की दावत दी जिस पर उन्होंने कहा कि अगर इस मसले का हल निकलता है और बिल में जो तरमीम है उन पर नजर गौर किया जाएगा तो मुलाकातें जो है वो उसमें सूदमंद साबित होगी। बिल की जो शिकें हैं उसमें तमाम इदारे जो KMC के अंडर थे उन तमाम को कराची के KMC के अंडर देना पड़ेगा और मेयर और KMC के इदारे को बाख्तियार बनाना होगा। इसके सिवा कोई मुज़ाकरात जो है वो नहीं किए जाएंगे। और धरने के हवाले से कह रहा था कि धरना जब तक जारी रहेगा और इसका मसला जो है सिर्फ मुज़ाकरात के साथ ही हल किया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। सड़कों पर एहतजाज करके बल्दियाती कानून में तब्दीली नहीं कराई जा सकती। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी ने जमात इस्लामी और दीगर अपोजिशन जमातों को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा, बल्दियाती कानून में तब्दीली का प्लेटफॉर्म असम्बली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सईद गनी का कहना था कि PTI सिंध के नए सदर रही सही पार्टी का भी जनाजा निकाल देंगे। गलियों में सड़कों पे एहतजाज करके अब कानून में तरमीम नहीं करा सकते। जो फोरम है कानून को तब्दील करने का वो असम्बली का फोरम है। एक और साहब सिंध के नए सदर बने। जिस दिन मुझे पता चला कि उन साहब को PTI सिंध का सदर बनाया गया है तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे पता था कि जो PTI थोड़ी बहुत रह गई है उसका भी ये जनाजा निकाल देंगे। कहते हैं कि जी सूबा सिंध में जो अगली हुकूमत है वो PTI की होगी। पता नहीं क्या खाकर आते हैं, कौन सा नशा करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं। अभी कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए, जो हशर इनका हुआ है वो आपके सामने है। पाकिस्तान में मजहबी रसूमात के लिए आए हिंदू यात्री कटास राज मंदिर पहुंच गए। यात्रियों ने जिला चकवाल में वाक़ई कदीम मंदिरों में मजहबी रसूमात अदा की। मजहबी रसूमात के लिए आए हिंदू यात्री कटास राज मंदिर पहुंच गए हैं। यात्रियों ने जिला चकवाल में कायम कदीम मंदिरों में मजहबी रसूमात अदा की। हिंदू यात्रियों की आमद पर उनका इस्तकबाल भी किया गया और उन्हें फूल भी पेश किए गए। यमन के करीब हौसी बागियों ने मुत्तहिदा अरब अमारात का बहरी जहाज़ कब्जे में ले लिया। बागियों के मुताबिक बहरी जहाज़ में फ़ौजी साजो सामान मुंतकिल किया जा रहा था। तर्जुमान के मुताबिक जहाज़ बगैर इजाज़त यमन के पानियों में दाखिल हुआ जिसमें असलहा ले जाया जा रहा था। दूसरी जानिब सऊदी इत्तहादी अफवाज ने बागियों का दावा मुस्तरद करते हुए कहा कि जहाज़ में अद्वियात और तिब्बी सामान था। इत्तहादी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि हौसी बागी जहाज़ को फौरी तौर पर छोड़ दें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बागियों ने बहरी जहाज़ को बहरे अहमर में यमनी बंदरगाह के करीब हदीदा से कब्जे में लिया था। खलीजी मुल्कों में रहने वाले नस्वार के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर। अरब मुल्कों में नस्वार का इस्तेमाल ममनू करार दे दिया गया। नस्वार के साथ अरब मुल्कों में जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने एयरपोर्ट्स पर बैनर्स आवेजा कर दिए हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।